حضرات آداب، میرا نام عالیہ وزیری ہے اور میں آپ کا ملاپ اخبار کی اس نئی سیریز میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ اس سیریز کا عنوان ہے اردو ہی کیوں۔ اس میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو ایسے لوگوں سے روبرو کرائیں جنہوں نے باوجود بہت سی مصروفیات کے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اردو کی خدمت میں صرف کر دیا ہے۔ ہر ہفتے ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو اردو کو اپنی زندگی کا ایک اہم، ایک امپورٹنٹ حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے مہمانوں سے میرا یہی سوال رہے گا کہ آخر اردو ہی کیوں؟ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب مادھو شری رام اور ان کے صاحبزادے روہن شری رام۔ اردو ہی کیوں کی اس چوتھی کڑی، اس 4th ایپیسوڈ میں آپ دونوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ شنکر شاد مشاعرہ، جسے DCM مشاعرہ یا پھر ہند پاک مشاعرہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ورثے میں ملی ہے مادھو ماموں۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی اس وراثت کو کندھے کا بوجھ نہ سمجھ کے اسے ایسی طریقے سے سجایا سنوارا ہے اور نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ ہمیں اس مشاعرے کے بارے میں کچھ ہسٹری بتائیے۔ پہلی بات، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اور میں کچھ اپنی ہندی اور انگلش کی مکسچر میں ہی بات کروں گا۔ یہ مشاعرہ شاید لوگ سوچتے ہیں کہ انڈیپینڈنس پہ شروع ہوا تھا یا انڈیپینڈنس کے تھوڑے سالوں بعد شروع ہوا تھا، پر ایکچولی میرے دادا اور ان کے جو چاچا تھے شنکر اور شاد، یہ لوگ مشاعرہ کرا کرتے تھے۔ یہ خود یہ ان کے قلم ہیں، اور یہ لائل پور میں مشاعرہ کرا کرتے تھے اور دلی میں مشاعرہ کرتے تھے اپنے گھروں میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ 1948 میں جب میرے دادا جی شاد گزرے تو شنکر کا بھی دل ٹوٹ گیا، اور ان کے گزرنے کے 2 سال بعد وہ بھی گزر گئے۔ اور ان کی یاد میں، اور ان کا کیونکہ اردو کے ساتھ اتنا پیار تھا، میرے گریٹ گرینڈ فادر لالا شری رام نے یہ مشاعرہ شروع کیا ان کی یاد میں۔ آج بھی جب ہم مشاعرہ کرتے ہیں تو کلام شنکر اور کلام شاد کہا جاتا ہے، اور ان کی ایک ایک نظم کہی جاتی ہے، اور یہ انڈیپینڈنس کے بعد ان کی یاد میں شروع کرا گیا۔ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بیچ میں کچھ سال کر نہ پائے، تو اس لیے اٹس ناٹ اے ایئرلی مشاعرہ اینی مور۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ 3 سالوں میں تو خیر یہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ لائیو مشاعرہ نہیں کر پائے ہیں۔ اور کیوں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے میں بچپن سے مشاعروں میں جایا کرتا تھا، اور خاص طور سے یہ شنکر شاد مشاعرہ، جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا نام ہے انڈو پاک مشاعرہ، پر اس کا صحیح نام ہے شنکر شاد مشاعرہ۔ تو ہم لوگ اس سال بھی نہیں کر پائے، اور کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ اب تو کووڈ کم ہو گیا ہے، پر ہم لوگ چانس نہیں لے پا رہے ہیں۔ بیچ میں جب ہم نے کچھ اور تکلیفوں کی وجہ سے روکا، چاہے وہ کچھ ہماری کمپنی میں پرابلم تھی، چاہے کچھ ایسی سچویشنز تھی جہاں ہم پورے پوئٹس کو بلا نہ پائے، تو چاہے وہ علی سردار جعفری تھے، چاہے کیفی اعظمی تھے، چاہے احمد فراز تھے، چاہے زہرا آپا تھی، ان کے میسیجز آیا کرتے کہ بیٹا اس کو کرنا ہے۔ اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے ایک مشاعرے میں احمد فراز نے مجھے ایک سائڈ میں لے جا کے کہا کہ بیٹا شہر اینٹ پتھر کے نہیں ہوتے، شہر جو ہوتے ہیں اس میں کیا جو کلچر ہے، جو اس کی ہیریٹیج ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس سے بنا کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز تم کر رہے ہو، اس طرح کی جو دلی کی شخصیت ہے اس میں تم کنٹریبیوٹ کر رہے ہو، اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں اس لحاظ سے لگا رہتا ہوں، اور ایک نظریے سے میں اردو کی سیوا میں لگا رہتا ہوں۔ تو یہی میرا مقصد ہے۔
बिल्कुल माधव मामू, आई थिंक यू आर बेसिकली शंकर शाद मुशायरा इज सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और आप इसको बना रहे हैं, इसको ईंट पत्थर से प्यार मोहब्बत से बना रहे हैं। तो अब मैं आती हूँ अगली पीढ़ी पे, रोहन। रोहन, आप अपने वालिद के साथ माधव मामू के साथ मिलके ये सालाना ईयरली मुशायरा ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें बताइए कि आने वाले सालों में इस मुशायरे को आप एक नई पीढ़ी, द यंग जनरेशन, हम लोग जो इंटरनेट से काफी इन्फैचुएटेड हैं, आप इस मुशायरे को कहाँ देखते हैं? अगर मैं सिंपल इंग्लिश टर्म्स में कहूँ तो व्हाट चेंजेस डू यू फोरसी एज द यंग जनरेशन, इस नई पीढ़ी से, फॉर दिस मुशायरा टू थ्राइव इन दिस क्लाइमेट ऑफ इंटरनेट फेम, जहां सरहदों, अब जैसे मामू बात कर रहे थे, कई शायर हैं जो सरहदों के उस पार से आते हैं। तो फॉर दिस टू बी ए सक्सेसफुल इवेंट, आप क्या चेंजेस आपके इस मुशायरे के लिए आगे क्या प्लान्स हैं? In this internet generation, I think a lot of us think that ये जो पुराने ट्रेडिशंस हैं जैसे मुशायरे के, ये आउट ऑफ टच हो रहे हैं, आउट ऑफ डेट हो रहे हैं, और यंगर जनरेशन को इंटरेस्ट लूज हो रहा है। पर आई थिंक मुशायरा जैसी चीज इटर्नल है, एंड इसकी जो अपील है, इसका जो मैसेज है, एंड इसकी जो खासियत है वो इटर्नल है। एंड आई थिंक हमें इंटरनेट और इंटरनेट जनरेशन को यूज करना है, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब लोग एक तरीके में से क्रिएशन जो है डेमोक्रेटाइज हो गया है। तो जैसे अगर कोई और शायरी लिखे, क्राउड सोर्सिंग, जो हमें पोएट्स आते हैं, पिछले कुछ मुशायरों में काफी यंग पोएट्स भी आए हैं, और आई थिंक इंटरनेट के जरिए we can increase that kind of participation a lot more. So I think weaving this eternal art form with this tradition with the modern tools is something that we must do moving forward, and I think we definitely intend to do that and intend to keep it going. So yeah. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। माधव मामू, रोहन ने डेमोक्रेटाइजेशन की बात की, तो आज के इस दौर में जहां हर चीज फायदा नुकसान, प्रॉफिट और लॉस के तराजू में तोली जाती है, हम हर चीज को प्रॉफिट और डेमोक्रेटाइजेशन के नजरिए से नहीं देखते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट और लॉस के नजरिए से देखते हैं, उसे तोलते हैं साल दर साल। ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों से कोविड की वजह से नहीं हो पाया है, पर इसको अगर हटा दें, साल दर साल ये मुशायरा ऑर्गेनाइज करने का जज्बा आप कहाँ से लाते हैं? आपका इम्पीटस क्या है? मेरा इम्पीटस इज बेसिकली कि जब मैं उर्दू की खूबसूरती देखता हूँ और जो लोग आके वहाँ अपनी शायरी कहते हैं और जो शेर पढ़ते हैं, काफी हद तक हमारे यहाँ बॉलीवुड कल्चर हो गया है और तमाशा बनाने का बहुत शौक हो गया है लोगों को। पर जिस तरह से हम अपने मरकज को लेके चलते हैं कि हम उर्दू की सेवा और वेरी हाई क्वालिटी शेर व शायरी का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, वो लुत्फ बहुत कम जगह मिलता है। और मेरे ख्याल से शायद हम लोग जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गाइडेंस में लोगों को बुलाते हैं, सिर्फ 10-15 पोएट्स आते हैं, ज्यादा हम लोग नहीं बुलाते। उसमें 4-5 नए जने होते हैं, कुछ हमारे दिग्गज शायर होते हैं, कुछ स्टॉलवर्ड्स होते हैं, कुछ बाहर से आते हैं। तो हम एक बड़ा अच्छा मिक्स बना के चलने की कोशिश करते हैं, और हमारी ये सोच रहती है कि बड़ी हाई क्वालिटी उर्दू की शेर व शायरी शेयर करी जाए। और उसके लिए हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत यंगस्टर्स भी आके हमारे मुशायरे में बैठते हैं सुनने के लिए और नोट डाउन करते हैं जो शेर व शायरी हो रही है, और उसके अलग अलग रिएक्शंस आते हैं खूब। और जो लुत्फ उठाने लोग के लिए लोग आते हैं, उनको मालूम है कि इस मुशायरे में बहुत ही उम्दा और अव्वल दर्जे की शेर व शायरी होगी, बहुत अच्छी उर्दू मिलेगी और बहुत
सीखने को मिलेगा और बहुत ही मिठास और रस अलग अलग किस्म के निकलते हैं इस मुशायरे से। तो आपकी बातों से लग रहा है कि ये जज्बा और ये जो मोहब्बत है ये बहुत ही नेचुरल चीज है आपके लिए, बहुत ही कुदरती चीज है। यस, आपको ये विरासत में मिली है, लेकिन आपके लिए ये जो आपकी मोहब्बत है उर्दू लैंग्वेज के लिए, जबान के लिए, कल्चर के लिए, ये एक बहुत ही कुदरती चीज है जो आपके अंदर से आती है। ये शायद अंदर से खैर तो नहीं आती है, पर इसमें इज इट जेनेटिक? नहीं, इट्स नॉट जेनेटिक। इसमें ज्यादा ये है कि जब कान में जैसे म्यूजिक में स्वर पढ़ते रहते हैं, फिर समझ आने लगती है थोड़ी थोड़ी और फिर लगाव बढ़ने लगता है। तो अब आई एम 58 years old, तो मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जब से शंकर शाद मुशायरा और भी मुशायरे जो मैं अटेंड करता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका लुत्फ उठाना, उसका आनंद पाना, उसमें जो मिठास है, जो मैसेज है, जो उसकी समझ है, वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे शायद मैं मैच्योर होता गया हूँ, उसकी मेरी एप्रिसिएशन भी बढ़ी है और उसकी वजह से नेचुरली प्यार भी बढ़ा है। साथ में इसके जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शायर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और जो मुझे लोग गाइड करते हैं और जो मुझे सिखाते हैं, वो इतना देते हैं और समझाते हैं, उससे भी बहुत मेरे को इनकरेजमेंट मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। आपने शायरी का लुत्फ उठाने की बात की, तो क्या आपको लगता है मुशायरे की फॉर्म को रेलेवेंट रखने के लिए, इस नफरत भरी इन्वायरमेंट में उसको रेलेवेंट रखने के लिए कोई चेंजेस अडेप्ट करने होंगे? और मैं चाहूंगी कि रोहन इस सवाल का जवाब दें। आई नो रोहन, आपने बात की इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, बट क्या आपके जवाब यही रहेगा कि मुशायरे की फॉर्म को, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको रेलेवेंट रखने के लिए क्या ये चेंजेस हैं जो आप इनको इन्फोर्स करना के बारे में सोचें? आई थिंक काफी आइडिएशन करना होगा, काफी क्रिएटिव रहना होगा, बट आई थिंक कोविड की वजह से दुनिया काफी आगे आ चुकी है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल यूसेज, सारे लोगों के पास फोन है, एंगेजमेंट बहुत आसान हो गया है और कंफर्ट भी हो गया है इन मामलों में, जैसे स्मार्टफोन यूसेज, कंजम्पशन ऑफ डिजिटल मीडिया, सबके पास डेटा प्लान्स हैं। एंड आई थिंक हमें क्रिएटिव होना होगा और ये देखना होगा कि हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, हम इनको टैकल कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अपना मैसेज जो है और उर्दू की प्रमोशन जो है वो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अभी इस वक्त हम कर नहीं रहे हैं, पर हमें सोचना होगा, हमें क्रिएटिव होना होगा और आगे बढ़ना। So creativity is a challenge and also a solution to adaptability of the mushaira in its form. That's what you're saying. Absolutely. माधव मामू, आपका क्या सवाल जवाब होगा कि इस मुशायरा की फॉर्म को रेलेवेंट रखने के लिए क्या चेंजेस अडेप्ट करने होंगे? इसमें आपके दो हिस्से हैं। एक तो रहा फॉर्म ऑफ द मुशायरा इटसेल्फ, तो इसमें जो मेन फॉर्म की हम एक बड़े हॉल में करें और उसके लिए हम लोगों को बुलाएं, उसका कितना ब्रॉडकास्ट करना है, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो अपनी जगह ठीक है। पर जो कोर मुशायरा है, जहाँ पे ऑडियंस आती है और दाद देते हैं टू द शायर्स, वो अपने नए शेर भी कहते हैं, नए बोलते हैं, नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं। साथ साथ इन्वायरमेंट की भी आपने बात करी। इन्वायरमेंट बेटा, 4 जंगें हो गई थी पाकिस्तान से, पर फिर भी हम लोगों ने अपना गोल बड़ा क्लियर रखा कि हम उर्दू की हिफाजत करना चाहते हैं, उर्दू से हम प्यार करते रहेंगे और हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो अब नई जनरेशन कैसे लेती है, हम लोग आगे कैसे करते हैं, कुछ शायद हाइब्रिड सिस्टम्स हमें अडॉप्ट करने पड़े,
जैसे भी करना पड़े, पर जो हमारा गोल है कि उर्दू की खूबसूरती और उर्दू की जन्म स्थल जो कहते हैं दिल्ली है, इसको हम लोग अपने आप को याद दिलाते रहे, और यहाँ पे जो कहते हैं कि गालिब की भूमि जो है, इसको हम लोग सींचते रहे अपने एफर्ट्स के साथ, और हम लोग यहाँ पे उर्दू को बिल्कुल जिंदा रखेंगे। और इसमें ये भी मैं साथ में कहना चाह रहा हूँ कि शायद मैं थोड़ा आगे भाग रहा हूँ, पर उर्दू बहुत ही बुलंद है और उर्दू बहुत ही अडेप्टेबल है। जो उर्दू में सुना करता था 25 साल पहले, उसमें काफी हद तक फारसी अल्फाज बहुत यूज होते थे, पर उर्दू सोचा जाए तो ये यहाँ की खड़ी बोली है दिल्ली की, और ये अडेप्टेबल है। जैसे जैसे समय चलते जा रहा है, उर्दू भी चलती जा रही है एंड अडेप्ट करती जा रही है, और काफी हद तक ये यहाँ की बोली है। आप कहीं भी चले जाएं दिल्ली में, आपको उर्दू के अल्फाज सुनने को मिलेंगे ही। तो ये है उर्दू की खूबसूरती और उर्दू की स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली, इतनी खूबसूरती से, आई डोंट थिंक आपने कोई भी लीप लेके जवाब दिया, इतनी खूबसूरती से आपने पूरी चीज को एक्सप्लेन किया, उसके लिए शुक्रिया आप दोनों का। माधव मामू, रोहन, आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और इस दुआ के साथ आपका हौसला और आपका जज्बा, आपकी उर्दू के लिए मोहब्बत, प्यार बरकरार रहे, और आने वाली नस्लें, जैसे रोहन में हमारे बाद जो लोग आएंगे, इस तारीखी मुशायरा का लुत्फ उठाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू अनदा।